تو ہم دیکھ رہے ہیں، میرے ساتھ کھولیں ذرا پہلا کرنتھیوں اس کا 16 باب، آج ہم اسٹڈی کریں گے 16 باب۔ ٹھیک ہے، اب اس چندے کی عوض جو مقدسوں کے لیے کیا جاتا ہے، جیسا میں نے گلگتیت کلیسیوں کو حکم دیا ویسے ہی تم بھی کرو۔ ہفتہ کا پہلے دن تم میں سے ہر شخص اپنی آمدنی کے موافق اپنے پاس کچھ رکھ چھوڑا کرے، تاکہ میرے آنے پر چندے نہ کرنے پڑے۔ جب میں آؤں گا تو جنہیں تم منظور کرو گے ان کو خط دے کر بھیج دوں گا کہ تمہاری خیرات یروشلم کو پہنچا دیں۔ نوٹ کریں، خیرات۔ اور اگر میرا جانا بھی مناسب ہوا تو وہ میرے ساتھ ہی جائیں گے۔ تو یہاں پر غور ہم کریں گے اس بات کے لیے۔ آج جو ہم دیکھیں گے ہمارا عنوان مضمون ہے، ایمان میں قائم رہیں، وفاداری سے خدمت کریں اور سب کچھ محبت سے کریں۔ ہالویا، کیا کریں؟ ایمان میں قائم رہیں، وفاداری سے خدمت کریں اور سب کچھ محبت سے کریں۔ اس لیے پولس رسول کہتا ہے کہ جاگتے رہو، ایمان میں قائم رہو، مردانگی کرو، مضبوط ہو، جو کچھ کرتے ہو محبت سے کرو۔ یہ ہماری مرکزی آیت بھی ہے، آیت نمبر 13 ہے، یہ ہم دیکھیں گے۔ 13 آیت جو ہے اس کو مرکزی آیت ہماری ہے آج یہ۔ تو پولس رسول یہاں پر جو بتاتا ہے کہ وہ 16 باب میں کلیسیا کو آخری عملی اقدامات کیا ہونے چاہیے، وہ چندے کے بارے میں پولس رسول بتاتا ہے کہ کہتا ہے کہ مخالفت، خدا کے خادموں، ایمانی مضبوطی اور محبت کے بارے میں تعلیم دیتا ہے پولس اس چیپٹر میں۔ یہ روحانی طور پہ بالغ ایماندار جو ہے باقاعدگی سے سخاوت کرتا ہے۔ جو ایک بالغ یعنی کہ ایک مچور جو ایماندار ہوتا ہے، جو خدا ان کے کلام پر عمل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، باقاعدگی سے سخاوت کرتے رہتے ہیں۔ جیسے ہم نے سخاوت کے بارے میں اگر دیکھیں تو کرنیلیس کی سخاوت جو تھی خدا ان کے حضور، خدا نے اس کو یاد کیا۔ لکھا ہے کہ کرنیلیس جو تھا وہ ایک غیر ایماندار شخص تھا، لیکن خدا سے ڈرتا تھا اور وہ خیرات بھی دیتا تھا بہت ساری جو ہے وہ یہودیوں کو۔ تو خدا نے اس کے دل کی اس حالت کو دیکھا اور اس نے خدا نے اس کو برکت دی، اور خدا نے پطرس سے اس کے بعد بھیجا۔ تو یہ خیرات جو ہے یہ بڑی زبردست چیز ہے، اس بارے ہم دیکھیں گے، ذرا غور کریں گے۔ آگے لکھا پولس کہتا ہے کہ ہمیں جو سیکھیں گے آج اس میں وہ ہے کہ ایک روحانی بالغ جو ہے کیا ہوتا ہے، وہ باقاعدگی سے اپنی جو ہے وہ سخاوت کرتا ہے، سخاوت دیتا رہتا ہے، خدا کے کھولے ہوئے دروازوں کو پہچانتا ہے، کھلے ہوئے دروازوں کو پہچانتا ہے، مخالفت کے باوجود وفادار رہتا ہے۔ جو ایک روحانی طور پہ بالغ شخص ہوتا ہے اس کی بات ہم کر رہے ہیں، جو ایمانداروں کی بات کی جا رہی ہے۔ خدا کے وفادار خادموں کی قدر کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ وہ خدا کے وفادار اور سنسیئر جو خادم ان کی قدر بھی کرتا ہے، ایمان میں مضبوطی سے قائم رہتا ہے، ہر کام محبت سے کرتا ہے۔ یہ ایک مضبوط اور ایک جو ہے وہ ایماندار شخص کی خوبیاں ہوتی ہیں، اس کے اندر یہ خوبیاں ہوتی ہیں۔ تو باقاعدگی سے سخاوت کرتا ہے۔ تو پولس رسول جو ہے سخاوت کے بارے میں بتاتا ہے کہ پولس نے ایمانداروں کو تعلیم دی کہ ہر ہفتے اپنی آمدن اور خدا کی برکت کے مطابق کچھ رکھیں۔ سخاوت کیا ہونی چاہیے؟ باقاعدہ، نہ کہ صرف کبھی کبھار، منصوبہ بندی کے ساتھ، خدا کی دی ہوئی برکت کے مطابق خوشی اور رضامندی سے، دیانتداری سے ضرورت مندوں اور خدا کے کام کے لیے ہمیں دینا چاہیے۔ تو یہ بہت ہی ضروری چیز ہے۔ ہم نجات، شفا، معجزات خریدنے کے لیے پیسے نہیں دیتے۔ نجات جو ہے وہ ہمیں یسوع مسیح میں ہمیں مفت ملتی ہے، ہمیں نجات کے لیے پیسے نہیں دینے پڑتے، مفت ہمیں نجات ملتی ہے۔ شفا کے لیے اور معجزات کے لیے ہمیں کچھ دینا نہیں پڑتا، کیونکہ یہ فری ہے اور دینا بھی نہیں چاہیے کسی کو، یہ مفت ہے، خدا نے ہمیں دیے، مفت ہی ہمیں دینا چاہیے۔ ہالویا۔ تو یہ خدا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم خرائط کریں، یعنی ہم چندہ بھی دیں اور مدد بھی کریں، اپنے پاسٹر صاحبان کی مدد کریں، اور پھر اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ اگر کسی کو ضرورت ہے، آپ کے آس پڑوس میں کسی کو ضرورت ہے، کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا، کوئی بھوکا ہے، کوئی غریب ہے، کوئی، اس کی مدد ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، پیسہ اپنے دینے کی ضرورت ہے، کسی کو ٹائم کی ضرورت ہے، کسی کو پیسے کی ضرورت دینے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ہے پولس رسول ہمیں یہاں پر بتاتا ہے کہ ہم نجات، شفا، معجزات خریدنے کے لیے پیسے نہیں دیتے،
निजात में यीशु मसीह पर ईमान की वसीला से खुदा की मुफ्त बख्शिश है। हम उसे देते हैं क्योंकि खुदा हमसे मोहब्बत करता है। तो हम भी खुदा से मोहब्बत करते हैं और उस मोहब्बत में हम देते हैं ताकि खुदा का काम हो। हालेलुया। देने में सिर्फ पैसे शामिल नहीं, हम अपना वक्त, सलाहियतें, खुराक और दुआ और हौसला अफजाई भी दे सकते हैं। तो हमें गरीबों, महाजरीन, सताए हुए ईमानदारों, बेवाओं, यतीमों, बीमारों, कैदियों की मदद करनी चाहिए। ये लोग जो है वो हमारी जो है वो मदद के जो है वो हकदार होते हैं। तो हम अपना जो है वो पैसा भी दे सकते हैं। पैसा कहीं हमें सलाहियत अपनी देनी है, कहीं हमें टाइम देना है अपना, खुराक भी दे सकते हैं, दुआ भी कर सकते हैं, हौसला अफजाई भी दे सकते हैं। तो चीज़ें सारी देने वाली हैं। जो खुदा के ईमानदार लोग हैं वो देते रहते हैं, करते रहते हैं, ऐसे काम करते रहते हैं, करने चाहिए। हम भी करते हैं, खुदा का शुक्र है। हमें भी खुदा ने शुरू से ऐसा दिल दिया है कि हम भी ऐसे ही करते हैं। मैं भी करता हूँ, मेरे बच्चे भी, बीवी करती हैं, हम सब खुदा का शुक्र है वो करते हैं। ख़ासतौर पर जो बड़े बच्चे हैं और मैं और वाइफ, हम जो है वो खुदा ने हमें ऐसा दिल दिया है कि हम फिनेंशियली भी मदद करते हैं लोगों की और उसके बाद दुआ भी करते रहते हैं। और खुदा का शुक्र है मिनिस्ट्री में कलाम भी सुनाते हैं। तो ये खुदा का फजल है कि गरीबों की हमें मदद करनी चाहिए, महाजरीन की, जो है रिफ्यूजीज़ की मदद करनी चाहिए, जो सताए हुए ईमानदार हैं, जो गरीब हैं, उनकी मदद करनी चाहिए, बेवा, यतीमों की मदद, बीमारों की मदद करनी चाहिए, कैदियों की खबर लेनी चाहिए। तो हम देखते हैं पुराने अहदनामे में मिसाल जो है सारपत की बेवा को हम देखते हैं। तो कहत के दरमियान भी उसने क्या किया, उसने कि कहत के दौरान सारपत की बेवा के पास सिर्फ थोड़ा सा आटा और तेल था, फिर भी उसने खुदा पर भरोसा किया और एलिया के साथ खाना बांटा। खुदा ने कहत के दौरान उसकी गिराने की ज़रूरत पूरी की। तो ये हम देखते हैं पहला सलातीन और उसका जो है वो हम 8 बाब में देखते हैं 16-17 आयत में कि जो सारपत की बेवा थी, उसके बाद जब एलिया ने उसको कहा मेरे लिए भी कुछ बना के ला, तो कहा मेरे पास ये उठी आटा है, थोड़ी सी कुप्पी में तेल है, ये पकाऊंगी खाऊंगी मर जाएंगे हम लोग। कहता उस वक्त क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी। लेकिन जब खुदा के बंदे ने कहा तो उसने फिर ईमान से उसने जो है उसकी खिदमत की और जो उसके पास था उसको पेश कर दिया। उसने ये नहीं कहा कि क्या होगा, ये खुदा का बंदा कैसा है, मेरे पास इतना कुछ है, थोड़ा सा तो है, ये मुझसे मांग रहा है। लेकिन उसने ये नहीं सोचा, उसने कहा नहीं, खुदा के बंदे ने सवाल किया है तो मुझे करना चाहिए, देना चाहिए, कोई बात नहीं, मेरे पास ना भी रहे तो कोई बात नहीं, खैर है, खुदा के बंदे को देना मैंने, तो इसलिए हमें खुदा के घर में देना चाहिए, हमें ज़्यादा देना चाहिए। हालेलुया। तो ये है बड़ी खूबसूरत मिसाल है जो सारपत की बेवा की मिसाल जो थी हम देखते हैं। तो खुदा ने उसको ब्लेस किया, उसके घर में कभी भी खाने की कमी नहीं हुई। खुदा ने उन सालों में 3.5 साल तक खुदा ने उनको फीड किया। तो ये है, इसका तोहफा मकदार में छोटा लेकिन ईमान में बहुत बड़ा था। हाँ, ये बात है, दरअसल ईमान की बात है ना, वो छोटे बड़े की या ज़्यादा कम की बात नहीं है। आप जैसे भी देते हैं, आप अच्छी नीयत से देते हैं। कलाम में लिखा है खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। हालेलुया। खुदा ने को परसेंटेज हमारे लिए मुकर्रर की, नए आदर में कोई परसेंटेज नहीं है। खुदा का बंदा पलूस भी बार बार कहते हैं, और जब चंदे करते हैं, अगर हम देखेंगे चंदों के बारे में तो फिर हम देखते हैं पलूस रसूल का जो खत है 2 करंथियों उसका 9 बाब में क्या लिखा हुआ देखते हैं जरा। लिखा है ये बात है कि जो थोड़ा बोता थोड़ा काटेगा, जो बहुत बोता बहुत काटेगा। जिस कदर एक ने अपने दिल में ठहराया उसी कदर दे, ना दरेक करके ना लालचाई से, को खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। और खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है ताकि तुमको हमेशा हर चीज़ काफ़ी तौर पर मिला करे और नेक काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ मौजूद रहा करे। तो ये बात ये है कि खुदा देखते हैं आपके दिल किस दिल से आप दे रहे हैं। अगर कोई मिसाल को तो 10% भी दे रहा है, वैसे तो नए आदर में 10% का कोई जिक्र नहीं है, कहीं भी नहीं है। अगर कोई देते भी हैं तो नीयत खुदा देखता है, किस नीयत से दे रहे हो, उसमें बरकत भी उस हिसाब से मिलती है। तो खुदा का बंदा यहाँ कहता है कि आप जितना आप बोते हैं उतना आप काटेंगे, और जो है आप खुदा अगर खुशी से देंगे आप और दिल से अपने देंगे, उसमें आपकी रजामंदी, आपका दिल भी शामिल है, आपकी खुशी भी शामिल है, उसमें जो बरकत है वो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते वो कितनी है। उसमें आपको भी इतनी खुशी होगी और दूसरे की ज़रूरत पूरी होगी और उस पर खुदा बरकत देगा आपको।
खुदा दिलों को जानता है, खुदा दिलों को देखता है। खुदा जो है वो खाली जो है वो ये मकदार नहीं देखता सिर्फ। बेवा जो थी आपने देखा था कि जब बेवा ने चंदा डाला, यीशु ने कहा इसने सबसे ज़्यादा डाला है। हालेलुया। खुदा के खोए हुए दरवाजे, खोले हुए दरवाजे से गुजरे। पौलुस ने क्या कहा यहाँ पर, क्योंकि आगे हम देखेंगे, ज़रा आगे पढ़ेंगे इसको और फिर दोबारा यहाँ पर आएंगे। पहले ये पूरा इसको रीड करेंगे सारे हवाले को। आगे हम देखते हैं 5 आयतें। मैं मकदीनिया को तुम्हारे पास आऊँगा, क्योंकि मुझे मकदीना जाना तो है ही, मगर रहूँ शायद तुम्हारे ही पास, और जाड़ा भी तुम्हारे ही पास काटूंगा, ताकि जिस तरफ मैं जाना चाहूँ तुम मुझे उस तरफ रवाना कर दो। क्योंकि मैं राह में तुमसे मुलाकात करना नहीं चाहता, बल्कि मुझे उम्मीद है अल्लाह ने चाहा तो कुछ अर्सा तुम्हारे पास रहूँगा, लेकिन मैं ईद पेंतीकोस्त तक इफ्सस में रहूँगा। मेरे लिए फसी दरवाज़ा, फसी और कारम दरवाज़ा खुला है, और मखालिफ बहुत हैं। अगर तमोसीस आ जाए तो ख्याल रखना कि वो तुम्हारे पास बेखौफ रहे, क्योंकि वो मेरी तरह खुदा का काम करता है। बस कोई उसे हकीर न जाने, बल्कि उसको सही सलामत इस तरह रवाना करना कि मेरे पास आ जाए। मैं मुंतज़िर हूँ कि भाइयों समेत आए। 12 में लिखा है, भाई अप्पलूस से मैंने बहुत इल्तिमास की कि तुम्हारे पास भाइयों के साथ जाए, अगर इस वक्त जाने पर वो मुतलिक राजी ना हुआ, लेकिन जब उसको मौका मिलेगा तो जाएगा। आगे लिखा 13 में, जागते रहो। ये सुनहरी याद भी, ज़बानी भी इसको याद करना है। जागते रहो, ईमान में कायम रहो, मर्दानगी करो, मजबूत हो, जो कुछ करते हो मोहब्बत से करो। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे लिखा 15 में लिखा है, आए भाइयों, तुम स्तिफनास के खानदान को जानते हो कि वक़िया के पहले फल हैं, मुकस्सों की खिदमत के लिए मुस्तैद रहते हैं। बस मैं तुमसे इल्तिमास करता हूँ कि ऐसे ताबे रहो, बल्कि हर एक के इस काम में मेहनत में शरीक है। और मैं स्तिफनास और फरतुनुस और अखकुस के आने से खुश हूँ, क्योंकि वो तुमसे रह गया था, उन्होंने पूरा कर दिया। उन्हें मेरी और तुम्हारी रूह को ताज़ा किया है। बस ऐसों को मानो। आसिया की कलीसियाँ तुमको सलाम कहती हैं। कोला और परसिकुला उस कलीसिया समेत जो उनके घर में है, तुम्हें खुदाउन में बहुत बहुत सलाम कहते हैं। साहब भाई तुम्हें सलाम कहते हैं। पाक पुस्तक लेकर आपस में सलाम करो। मैं पौलुस अपने हाथ से सलाम लिखता हूँ। जो कोई खुदाउन को अजीज नहीं रखता मलाउन हो। हमारा खुदाउन आने वाला है। क्या हो? हमारा खुदावंद आने वाला है। खुदावंद यीशु मसीह का फजल तुम पर होता रहे। मेरी मोहब्बत मसीह यीशु में तुम सब से रहे। आमीन। तो ये है पौलुस रसूल का जो हमने आखिरी चैप्टर पढ़ा है आज, पहला कुरिन्थियों उसको 16 बाब जो आज हमने पढ़ा है। अब इसकी थोड़ी सी गौर करेंगे, थोड़ी चीज़ें सीखेंगे। यहाँ पर सीखने वाली जो चीज़ें हैं वो हम देखेंगे। पौलुस रसूल कहता है कि खुदा के खोले हुए दरवाजे से गुजरे। पौलुस ने मेरे एक वसी और कामल दरवाज़ा खोला है, मुखालिफ बहुत हैं। खुदा का खुला हुआ दरवाज़ा मुश्किलात से खाली होना ज़रूरी नहीं। पौलुस के सामने एक वक्त में अजीम मौका था और शदीद उस वक्त मुखालफत बहुत ज़्यादा थी, और वो टाइम जो था बड़ा सख्त टाइम था। लेकिन खुदा के बंदे ने बड़ा काम किया, और बहुत वसाइल नहीं थे, जहालत बहुत ज़्यादा थी, और नई जो क्रिश्चियनिटी थी, नए ना वो खिदमत थी। तो हम देखते हैं कि पौलुस रसूल ने बहुत सारी मुश्किलात को झेला। तो आज हम देखते हैं खुदा अंजील के लिए बहुत से दरवाजे खोल रहा है हमारे लिए। दरवाजे बहुत सारे आज खुले हैं इस वक्त। कलीसियाँ और दुआओं के जरिए से दरवाजे हम खोल सकते हैं। इस तरह दरवाजे हम खोलते हैं, उसमें कैसे काम कर सकते हैं? कलीसियाओं में और दुआओं में, इज्तिमाई दुआओं के जरिए से, यूट्यूब, फेसबुक, दूसरी ऑनलाइन जगहों के ज़रिए से खुदा ने हमारे लिए दरवाजे खोले हैं ताकि हम खिदमत कर सकें। तो महाजिर और पनाह गज़ीरों के दरमियान हम खिदमत कर सकते हैं। अस्पतालों में, जेलों में हम खिदमत कर सकते हैं। इस वक्त बहुत दरवाजे खुल गए हैं, और जो है वो इसलिए यीशु ने कहा था कि खुदा यीशु ने दुआ की थी कि मजदूर भेज दें। खेत बहुत बड़ा है, मजदूर बहुत थोड़े हैं, खेत बहुत है। आप जहाँ चाहें आप खिदमत कर सकते हैं। आप ऑनलाइन कर सकते हैं, कलीसिया में कर सकते हैं, हॉस्पिटल, जेलों में कर सकते हैं, पड़ोसियों, अपने मोहल्ले में कर सकते हैं। आप इस वक्त बहुत सारे दरवाजे खुले हुए हैं।
तो हमने क्या करना है कि मुखालफत के बावजूद हमने मुखालफत से नहीं डरना या किसी चीज़ से परसिक्यूशन से नहीं डरना, हमने खुदा के काम को करना है। और मैं भी खुदा का शुक्र कर रहा हूँ खुदा का काम, और खुदा हमने इस्तेमाल कर रहा है खुदा के अपने जलाल के लिए। तो मैं जो है वो खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा इस्तेमाल करता है। मैं मुखालफ जो है बहुत सारे जो है वो अब जो है वो शैतान जो है बहुत ज़्यादा रास्ते रुकावट की कोशिश करता है, बहुत से डिस्करेजमेंट लाता है जो खुदा का काम करना चाहते हैं उनकी ज़िंदगी में। और खुदा के खादमीन के लिए खादमीन जो है वो हर रोज़ इब्लीस के साथ उनका मुकाबला होता है, लड़ते हैं और बड़ी मुश्किल जो है वो पैदा करने की कोशिश करता है। लेकिन जो हमारी तरह दलेर लोग हैं, जो खुदा के पाक से भरे हुए हैं, जो खुदा जिनको सपोर्ट करता है, खुदा जिनके साथ खड़ा होता है, वही लोग इस दौर में खिदमत करें। ये आखिरी दौर की खिदमत है और ये बहुत सख्त खिदमत है। इससे पहले जो थे वो जो थे इतनी मुसीबतें नहीं थी जितनी आप इस दौर में ज़्यादा हो गई हैं। मैं समझता हूँ इस वक्त इब्लीस जो रोकने की कोशिश कर रहा है, एक हाथ को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकता। खुदा जो है बड़ा है, जो इस वक्त मनादी होनी है। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हो रही है, खुदा बहुत से लोगों को इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए हमें घबराना नहीं, कभी भी हमने आगे बढ़ते जाना है, ईमान में मजबूती में और कायम रहना है, मजबूत में होकर हमने खुदा की कायम जो है खिदमत करना है। जागते रहना, लिख के कहता है कि जागते रहो, तेरी मत कहता है जागते रहो, ईमान में कायम रहो। हालेलुया। जागते रहो से मुराद ये है आजमाइश, झूठी तालीम, गुरूर, गुनाह और रूहानी गफलत से खबरदार रहें। जागने से मुराद ये है कि हम जागते रहें, कोई आजमाइश में ना पड़ जाए, कोई हम आजमाइश से बचें, झूठी तालीम से बचें, गुरूर से बचें, अपने अंदर गुरूर ना पैदा करना, कहीं गुनाह और रूहानी गफलत से खबरदार रहें। इसलिए रसूल यहाँ पर कहता है कि जागते रहो। किन चीज़ों से हमें जागने की ज़रूरत है? हर किस्म के आजमाइश से बचना है, कोई आजमाइश में न पड़ जाए। हम जागते रहें ताकि हमें आजमाइश में न पड़ जाए, झूठी तालीम हमें कहीं गुमराह ना कर दे, हमें गुरूर कहीं में ना आ जाए कि दौलत का या तालीम का या किसी सेमिनरी का डिग्री का गुरूर ना हमें तबाह कर दे। गुनाह जो है वो ज़नाकारी, बदी, ऐसे गुनाह जो है वो हमें ना कहीं तबाह कर दें। बचना है हर किस्म झूठ, हर तरह के बचना है हमने, लालच से, हर तरह की बुरी बात से बचना है। और हमने क्या करना है? रूहानी गफलत से खबरदार रहना है। इसलिए कहता है पलूस जागते रहो। फिर कहता है ईमान में कायम रहो, अपनी ज़िंदगी को जज्बात, मकबूलियत या माशरती दबाव पर कायम ना करें। अपनी ज़िंदगी यीशु मसीह कलाम पर ताबीर की तामीर में करें, यानी हम यीशु अपनी ज़िंदगी जो है उसको ताकि कलाम के मुताबिक कायम रखें, खुदा में कायम रहें, कलाम में कायम रहें, रास्तबाजी में कायम रहें, ईमान में कायम रहें। और जो है वो कभी भी जो है वो जज्बाती तौर पे या मकबूलियत या माशरी दबाव में ना आए, बल्कि कोशिश करें कि अपने ईमान में कायम रहें, जो है वो कभी भी ऐसे ना आए। अब आपको पता होगा यूसुफ जो होना जो है वो करेक्टर था, उसने माशी दबाव में, पैसे के लालच में जो है वो अपना ईमान छोड़ दिया और जो है वो दूर हो गया खुदा उनसे, ईमान में कायम नहीं रहा। बहुत सारे ऐसे भी वाक़यात होते हैं, बहुत कम हैं। क्रिश्चियनिटी में याद रखें बहुत कम लोग जो हैं वो बैक साइड करते हैं, जो खुदा उनको छोड़ते हैं। बहुत जो है बहुत मैंने नहीं देखा जो होना जो है वो यूसुफ जो होना के अलावा मेरे ख्याल मैंने कोई कम ही लोग देखे हैं। मैंने नहीं देखे कोई ऐसे कोई कि जो मसीह को कबूल किया हो किसी वजह से बैक साइड। बहुत कम, रेयर केस होते हैं, बहुत कम होते हैं। लेकिन मसीह में आते हैं ढेरों के हिसाब से आते हैं, मिलियन के हिसाब से लोग आ रहे हैं दम की बातचीत में और यीशु मसीह पर ईमान ला रहे हैं। क्रिश्चियन जो हो रहे हैं लोग मिलियंस में आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। ज्यूज, मुस्लिम, हिंदू, उसके बाद सिख, हर एक मज़हब से जो है वो मिलियन के हिसाब से लोग आ रहे हैं और हर रोज़ आते हैं खुदा यीशु मसीह को कबूल करते हैं लोग। जाने वाले बहुत रेयर है। मैंने मुझे नहीं याद कोई यूसुफ जो ना के नाम मुझे याद, और मुझे कुछ ज़्यादा लोग नहीं पता जो मेरी ज़िंदगी में अब तक 46 ईयर 60 तो मेरी एज होगी, 46 ईयर में मेरा नहीं तजर्बा कि मैंने कोई ऐसा देखा होगा बैक स्लाइड कर गया हो किसी वजह से। को हमारे लोग जो है वो मर जाना पसंद करते हैं, मौत ले लेते हैं, लेकिन इनकार नहीं करते। बहुत कम लोग हैं, वेरी रेयर। इसलिए हमें देखना है और ईमान में हमने कायम रहना है। हमने किसी तरह की हमने जो है वो ज़िंदगी में जज्बाती जो है फैसला नहीं करना
या हमने कोई माशी दबाव में आकर कभी घबराना नहीं है, अपने ईमान को नहीं छोड़ना, क्योंकि ईमान के बगैर कोई खुदावंद को ना देखेगा। ईमान जो है बहुत ज़रूरी है हमारा। इसलिए कहता है कि दलेर बनो, मर्दानगी करो। कहता है कि मसीही दिलेरी जारियत नहीं, ये मुश्किल हालात में भी खुदा की फरमाबरदारी करने की कुव्वत है। इसलिए खुदा का बंदा कहता है मर्दानगी करो। हालेलुया। क्योंकि खुदा कलाम मकाशवा में लिखा है कि बुज़दिल, जरा देखेंगे हवाला यहाँ पर मकाशवा में बड़ा खूबसूरत हवाला है। खुदा ने कहा मकाशवा 21 बाब में लिखा है कि बुज़दिल जो है वो खुदा की बादशाही में दाखिल हो, इसलिए यहाँ पर लिखा है मर्दानगी करो। लिखा है कि जो मकाशवा 21 बाब में लिखा है, मगर बुज़दिलों और बेईमानों, घिनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों, जादूगरों, अद्भुत परस्तों, सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा, ये दूसरी मौत होगी। तो ये है वो लोग जो हैं जो बैक साइड कर जाते हैं, या जो किसी भी आजमाइश में घबरा जाते हैं, पिछड़ जाते हैं, बुज़दिल हो जाते हैं, वो अपने ईमान का इकरार नहीं करते, ईमान में जो है वो घबरा जाते हैं और पिछड़ जाते हैं। वो उनके बारे में लिखा बुज़दिल है, वो बुज़दिल होते हैं वो लोग। वो से ऐसे भी लोग होते हैं जो नए नए आते हैं, वो थोड़ी सी आजमाइश पड़ती पिछड़ जाते हैं। ये लोग मोज़ात के लिए आते हैं, मोज़ा मिलेगा यीशु को, चर्चा बड़े मोज़ा, चलिए भाई, वो तो फसली बटेरियन को कहते हैं, हम आते हैं वो सिर्फ मकसद लेने के लिए आता है, मकसद लिए चले गए। तो वो इसलिए खुदा यीशु मसीह ने बीज की मिसाल दी थी। जो बीज जो है वो राह के किनारे गिरा, पथरीली ज़मीन पे गिरा, कुछ ज़रख़ेज़ ज़मीन पे गिरा, ये उन्हीं लोगों के लिए बारे में है। लेकिन जो हमारे जैसे मजबूत ईमान के हैं, हमारे बाप दादा भी, मुझे याद है कि सब क्रिश्चियन लोग थे, वो मसीही थे, सादा लोग थे, अनपढ़ थे, लेकिन सादा थे, ईमान में खुदा में कायम रहना लोग तो कायम रहे और इसी ईमान में सो गए, वो खुदा के पास चले गए। तो ये है कि हमें जो है वो दिलेर बनना है, बुज़दिल नहीं हमने बनना, दिलेर बनना। ईमान बेईमान, देखा, बुज़दिलों बेईमानों, जो बुज़दिल जो बेईमान है, घिनौने लोग हैं, खूनियों, हरामकारों, जादूगरों, बुत परस्त, सब झूठों के साग जलने में झील में होगा, ये दूसरी में। हमने बचना है कि हमने क्या करना, मर्दानगी करनी, मजबूत होना है हमने। इसलिए बंदा खुदा का बंदा कहता है मर्दानगी करो, यानी मजबूत हो। तो हमारी हकीकी ताकत खुदा है, हमारी हकीकी जो है ताकत जो क्या है, दुआ है, खुदा का कलाम है, रूह कुदस है। यीशु मसीह पर इंसार करने से हमें जो है हकीकी ताकत मिलती है, हम मजबूत होते हैं, यानी हम रूह कुदस के वसीला से मजबूत होते हैं। रूह कुदस हमें एम्पावर करता है, हमें अनाइन करता है, और रूह कुदस ही बोलता है, और खुदा हम ब्लेस करता है। पाक रूह हमें दुआ करना सिखाता है, कलाम पढ़ना सिखाता है, और हम ईमान में कायम रहना सिखाता है सबसे बढ़कर। और उससे बढ़कर हमें रूहानी तौर पे इब्लीस के मुकाबले में जो है वो जंग करना सिखाता है, जंग भी करता है रूहानी तौर पे दुआ के वसीला से। जब हम जंग करते हैं इब्लीस के साथ, अपने ईमान में कायम रहकर हम जंग करते हैं, मुसीबत में रहकर हम ईमान में कायम रहते हैं। ये है रूहानी तौर पे मजबूत होना। हमें मजबूत होने की ज़रूरत है, क्योंकि हम बहुत सारी मुश्किलात में जो है गुजरते हैं। हमने मजबूत रहना, कभी घबराना नहीं है, कभी परेशानी हो। खुदा जो है वो, पतरस ने सवाल किया था, एक खुदावंद, हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे, हमें क्या मिलेगा? तो उसने कहा कि तुम्हें जो है वो बादशाही मिलेगी, खुदा की बादशाही मिलेगी, जहाँ में भी तुम्हें बरकतें मिलेगी, आने वाले जहाँ में हमेशा की ज़िंदगी मिलेगी। तो उसने कहा कि जो इंसान से नहीं हो सकता खुदा से हो सकता है, खुदा से सब कुछ हो सकता है, कि खुदा जो है वो हर चीज़ का बनाने वाला है। खुदा जो है हमारे ईमान का बानी जो है वो हमारा शामिल करने वाला यीशु, उसी वही सब कुछ करता है, सब कुछ वही हमें देगा। हमारी तो उम्मीद उसी पे है कि वही हमारा जो है वो खुदावंदों का खुदा, बादशाहों का बादशाह है। उसके बगैर हम कुछ भी नहीं है। हमारा उम्मीद खुदावंद है, हमारी उम्मीद खुदावंद पर होनी चाहिए कि वही हमें जो है हमेशा की ज़िंदगी देगा, जो इंसान से नहीं हो सकता, जिस दुनिया में हम नहीं कर सकते, वो खुदा करेगा, जो कमियां हैं पूरी करेगा। तो कुछ उसने वादे किए, वो वादे उसने जो है वो ला तब्दील हैं, उसके वादे जो हैं वो बिल्कुल शक से बरपे हैं, ला तब्दील हैं उसके वादे, मली और मजबूत वादे उसने हमारे साथ किए हैं, और जो वादे किए उसको पूरा करने भी कादर है। हालेलुया। इसलिए हमारा ईमान जो है खुदा में हमेशा कायम होना चाहिए, कामल होना चाहिए। हमारा ईमान घबराने की ज़रूरत नहीं है, तो यीशु मसीह ने जो वादे किए उसको पूरा करने पर कादर है। यीशु मसीह ने मार्था ने कहा था कि मेरा भाई जी उठेगा, उसने कहा तेरा भाई जी उठेगा, उसने कहा क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ,
जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, जो जिंदा है मुझ पर ईमान तब तक नहीं मरेगा। तो इस पर ईमान रखती है? उसने कहा खुदा मैं ईमान रखती हूँ कि जो है वो आने वाला जो मसाया था, खुदा का बेटा, बादशाहों का बादशाह तू ही है, हम तुझ पर ईमान रखते हैं, तू हमारा नजात दहिंदा है। तो ऐसा हमारा ईमान होना चाहिए। और हमें जो इब्लीस शैतान के लाइस के ऊपर, झूठ के ऊपर बिल्कुल ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं, करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि हमें मजबूत रहना है। तो हमारी जो है हकीकी मजबूती जो है वो उस वक्त होती है जब हम ईमान में कायम होते हैं, रूह कुदस की गाइडेंस में चलते हैं, और जो हो हकीकी तौर पे हम जो है वो दुआ में टाइम गुजारते हैं, कलाम पढ़ने में दुआ वक्त गुजारते, उसकी प्रेजेंस में रहते हैं। कोशिश किया करें जब वीकेंड पे आपको टाइम होता है, सैटरडे संडे में, और आप चर्च तो जाते हैं, चर्च तो एक रूटीन है, जाते हैं आ जाते हैं। ये मैं एक आम बंदे से बात कर रहा हूँ, खादमीन से भी बात कर रहा हूँ। खुदा की प्रेजेंस में टाइम गुजारें ज़्यादा। आप याद रखें कि जो लोग, जो पास्टर साहबान ख़ास तौर पे जो खादम होते हैं, जितना खुदावंद के हुज़ूर में टाइम गुजारते हैं, उतनी खुदा की अनॉइंटिंग उनकी ज़िंदगी में बढ़ती है, उनकी विजडम, खुदा का पाक रूह की नेमतें, रूह के फल उनकी ज़िंदगी में, उनकी ज़िंदगी में, और खुशी उनकी ज़िंदगी में, खुदा का काम बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। क्योंकि लिखा है कि जितना हम बोएंगे उतना हम काटेंगे। ये फिजिकली तौर पर बात है ऐसी है कि जितना हम, अगर माली तौर पर जितना बोएंगे उतना हम काटेंगे, जितना हम रूहानी तौर पर बोएंगे उतना हम काटेंगे। हेलोया, खुदा का बंदा क्या कहता है? लेकिन ये बात ये कि जो थोड़ा बोता है थोड़ा काटेगा, जो बहुत बोता है बहुत काटेगा। यानी जो खुदावंद के हुज़ूरी में ज़्यादा टाइम गुजारेगा, दुआ में गुजारेगा। इमेजिन करें कि अगर आप खुदा की हुज़ूरी में टाइम गुजारते हैं, खुदा के साथ बातें करते हैं, कलाम पढ़ते हैं, परस्तिश करते हैं इसको, तो इसका मतलब आप बो रहे हैं, अपना टाइम बो रहे हैं, खुदा उनको अपना टाइम दे रहे हैं। तो खुदा देखता है, खुदा हर एक चीज़ का बदला देगा। इसलिए यीशु ने कहा था कि देख मैं जल्द आने वाला हूँ, हर एक काम को मुफ्त देने के लिए अजर मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, इब्तिदा इंतहा हूँ। बारिक हैं जो अपने जामे धोते हैं, जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे। हम दरवाजे शहर में दाखिल होंगे, मगर कुत्ते और जादूगर हराम को नहीं, बदतुरत झूठी बात को पसंद करने वाला बाहर रहेगा। तो हर एक काम के माफ़िक हम जो खादमीन हैं, हमारे कामों के माफ़िक खुदा जो हमें बदला देगा कि हम कितना जो है मेडिटेशन करते हैं, कितना हम बैठ के दूसरों के लिए दुआ करते हैं, जो है वो इसराइल के लिए हम कितना जो है वो दुआ करते हैं, अपनी फैमिली के लिए जो है दुआ करते हैं, कितनी हम जो है वो दुआ करते हैं कि खुदा इस दुनिया में अमन मान हो, कितना हम दुआ करते हैं कि खुदा तेरा कलाम दुनिया में फैले, लोग तुझ पर ईमान लें। यानी ये मेरी दुआओं का, हमारी ये पॉइंट्स हैं, खुदावंद इसको पसंद करता है इन चीज़ों को, क्योंकि खुदा ने दुआ रबानी में इसलिए खुदा यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि हमें किस तरह दुआ करनी चाहिए। तो ये है यानी कि हमारी जो है मजबूती किस में है? दुआ में है, कलाम में है, रूह कुदस की गाइडेंस को, रूह कुदस की आवाज़ सुनने में है, और रूह कुदस की मर्जी के मुताबिक दुआ करने में हमारी मजबूती है। हमने मजबूत होना, यीशु पर ईमान में और ज़्यादा मजबूत होना। तो सब कुछ मोहब्बत से करो। आखिर में खुदा का बंदा कहता है मोहब्बत के बगैर दिलेरी सख्ती बन सकती है, मोहब्बत के बगैर इल्म गुरूर बन सकता है, मोहब्बत के बगैर खिदमत सिर्फ नुमाइशी बन सकती है। ये बात ज़रा गौर से सुने मेरी। यहाँ पर जो आयत लिखी है, जो कुछ करो, क्या करो? जो कुछ करो मोहब्बत से करो। अगर हम मोहब्बत के साथ नहीं करेंगे तो क्या होगा? मोहब्बत के बगैर दिलेरी क्या हो, वो सख्ती बन जाती है, और मोहब्बत के बगैर इल्म गुरूर बन जाता है। जब मोहब्बत से नहीं करते तो हम गुरूर में आ जाते हैं, और मगरूर जो है वो तो आपको पता है, खुदा वैसे ही गुरूर को वैसे ही पसंद नहीं करता। मोहब्बत के बगैर जो हम खिदमत सिर्फ नुमाइशी बन जाती है, हम जो है वो सिर्फ दिखावे के तौर पे करते हैं, वो मोहब्बत के साथ नहीं, वो दिल से नहीं होती। दिल से हमारी मोहब्बत भी, खिदमत भी पसंद करता है, चाहता है कि हम मोहब्बत के साथ और दिल से अपनी खिदमत करें। अगर हम बिजनेस करते हैं, हम नौकरी करते हैं, अगर हम खुदा के खादम हैं तो वो दिल से करें, और खुदा के लिए करें, और खुदा के जलाल के लिए करें, और दिल से करें। किसी पर एहसान नहीं करते, या पैसे के लिए नहीं हम करें, लालच में नहीं करें, खुदा के जलाल के लिए करें, वो बहुत बेस्ट है। रेदला तो जो है मोहब्बत के बगैर जो है दिलेरी जो है सख्ती बन जाती है, मोहब्बत के बगैर इल्म गुरूर बन सकता है, मोहब्बत के बगैर खिदमत हमारी जो है नुमाइशी हो सकती है। सच्चाई ज़रूर बयान करें, लेकिन उसे
आजिज़ी, हिकमत और मोहब्बत के साथ बयान करें। हालेलुया। सच्चाई हमें बयान करनी चाहिए, अच्छी बात है। अब यीशु मसीह की मिसाल हम देखते हैं। यीशु मसीह जो है वो दिलेरी और मोहब्बत की सबसे बड़ी मिसाल हमें मिलती है, उसकी ज़िंदगी में मिलती है। उसने सच्चाई की मुनादी की। यीशु मसीह ने सच्चाई की मुनादी की, रियाकारी का सामना किया, रद्द किए हुए लोगों को कबूल किया, बीमारों को शिफा दी, गुनाहगारों को तौबा के लिए बुलाया। शरीर पर शदीद तकलीफ में भी उसने अपने दुश्मनों के लिए दुआ की, आए बाप इनको माफ़ करके नहीं जानते कि क्या करते हैं। ये मसीह की मोहब्बत, यीशु मसीह की मोहब्बत जो है वो मैं कहता हूँ अजीम है। इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान जो है वो नहीं हो गुजरा जिसकी वैसी मोहब्बत जिसने दिखाई हो। और वो इंसान तो उसके लिए बहुत छोटा लफ्ज़ है, वो तो खुद क्रिएटर था, खुदा है, दाता खुद वो इंसान बन गया। उसने इंसानी शक्ल इख्तियार की, इंसानों का मुशाबे हो गया। यानी खुदा जो है वो खुदा की इंसान की सूरत में जो है वो हमारे पास आ गया, इंसान बन गया। और खुदा जो था उसने अपने आप को खाली कर दिया, इंसानों की शक्ल इख्तियार की, इंसानों का मुशाबे हो गया और मौत, बल्कि इसलिए मौत गवारा की। इसलिए खुदा ने उसको वो नाम बख्श है जो सब नामों से आला है, ताकि हर एक ज़ुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। तो ये हवाला जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है। फिलिपियन जो है वो पढ़ेंगे ज़रा। एक है कि वैसे ही याद रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। अगर हम इस आयत को ज़ुबानी सीख लें और इसको अगर हम जामा पहना लें, अमली जामा अपनी ज़िंदगी में, तो हम बहुत कामयाब हो सकते हैं, बड़ी तरक्की कर सकते हैं अपनी मिनिस्ट्री में, बिजनेस में, अपने हम जो है वो नौकरी में, जहाँ जिस जगह भी हो, हम जो भी कर रहे हों। अगर वैसा ही हम याद रखें जैसा मसीह यीशु का भी था, तो उसने अगरचे खुदा की सूरत पे था, खुदा को कब्ज़ों में रखने की चीज़ें समझा, क्योंकि अपने आप को खाली कर दिया, खादम की सूरत इख्तियार की। देखें यीशु मसीह को इतना जो है वो खिदमत में इतना जो है वो अजीम उसने मिसाल पेश की कि अपने शागिर्दों के पाँव धो रहा है। देखिए क्रिएटर है, बनाने वाला है, खुदावंद खुदा है और पाँव धो रहा है, अपने शागिर्दों के पाँव धो रहा है। और फिर उनकी खिदमत कर रहा है। और फिर जो है वो क्या मिसाल है यीशु मसीह की ज़िंदगी, क्या मिसाल है हमारे लिए कि अपने आप को खाली कर दिया, खादम की सूरत से इंसानों का मुशाबे हो गया, इंसानी शक्ल में ज़ाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया, यहाँ तक कि फरमानदार आकर मौत, बल्कि इसलिए भी मौत गवारा की, मौत भी गवारा की, इसलिए भी मौत गवारा की। अरे बाप अगर हो सके तो प्याला मुझसे टल जाए, तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और खुशी से उसको कबूल कर लिया। इस वास्ते खुदा ने मुझसे बहुत सरबुलंद किया, वो नाम बख्शे सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर घुटना झुके, आसमानियों का, ज़मीनियों का, उनका जो ज़मीन के नीचे हैं। ओ खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक ज़बान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक ज़बान इकरार करती है। आज आप अगर देखें आप तो हर ज़बान इकरार करती है, और कोई ऐसी ज़बान नहीं है जो इकरार नहीं करती और जो ना करेगी। हर एक ज़बान, आसमान पर, ज़मीन पर, आसमान पर फरिश्ते उसकी परस्तिश करते हैं, उसकी इबादत करते हैं, और फरिश्ते जो है उसको हल्लुया हल्लुया कहते रहते हैं हर वक्त, कद्दूस 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 खुदावंद खुदा जो है, जो थार जो आने वाला है। ज़मीन पर इंसान आप देखें, आज देखें आज पूरी दुनिया में कितनी परस्तिश की है लोगों ने, हर चर्चेज में लोगों के खुदा ने परस्तिश की, लोगों खुदा की परस्तिश की गई है पूरी दुनिया में। गीत कितने गाए गए हैं, कितने लोग हील हुए हैं, कितने लोग जो है वो डिलीवर हुए हैं, कितने लोग ब्लेस ब्रेक थ्रू मिला आज, ये खुदा के नाम को आज जलाल मिला। आज का दिन जो है बड़ा पूरी दुनिया में यूनिवर्सल अगर आप देखें तो, और ज़मीन के नीचे सब उसका इकरार करते हैं, सब उसके नाम को जलाल देते हैं। और आप के जलाल के लिए हर एक ज़बान कर कि यीशु मसीह खुदावंद है, ही इज़ लॉर्ड, हालेलुया, और वो जल्द आने वाला है। तो ये पलूस उसूल हमें सिखाते हैं यहाँ पर। तो ये है खुदा के वफादार खादमों की कदर करें, मकसद जो खुदा की खिदमत करते हैं। पलूस उसूल ने हमें यहाँ पर सिखाया कि पलूस जो था, पलूस ने तीमोथियस, एपलूस, स्तिफनास, फर्तुनुतुस और खिशर का जिक्र किया है। ये हर शख्स ने मुख्तलिफ तरीके से खिदमत की। कलीसिया मुकाबले हसद की जगह नहीं होनी चाहिए। कलीसिया में यानी मुकाबले और हसद की जगह नहीं होनी चाहिए। नादी करना चाहिए हमें, दुआ करना चाहिए हमें, और जो है वो मदद करनी चाहिए हमें, जो खादमीन है ख़ास तौर पे
खिदमत करते हैं, जो खुद अपने बच्चों को छोड़ के, सब कुछ छोड़ के अपनी नौकरियां में छोड़ देते हैं, खुदा के जलाल के लिए काम करते हैं, वो क्या मुबारक लोग हैं। और कितना वार्स आसमान पर खुदावंद उनको देखा, अब हम दादा नहीं कर सकते कि खुदावंद जो है, जिस तरह पतरस ने भी कहा था, हम सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो ले, हमें क्या मिलेगा। उसने कहा कि तुम्हें जो है वो इस दुनिया में 100 गुना और आने वाले आलम में हमेशा की ज़िंदगी मिलेगी। तो ये खादमीन को जो है एजाज़ हासिल है, ये खादमीन के लिए स्पेशल जो है वो एक अनॉइंटिंग है और एक वादा है खुदा का, जो खुदा पूरा करेगा मेरे साथ और जितने खादमीन हैं भाई, प्रवेश के साथ भी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दलेर खादम है खुदा दा, प्रेज भाई के लिए तालियां बजाएंगे हम। खुदा खुदावंद आपको बरकत दे। तो और बहुत सारे खादमीन हैं, करोड़ों के हिसाब से हैं, लाखों के हिसाब से हैं। खुदावंद साहब को बरकत दे। खुदा के जलाल के लिए जो है हम खिदमत करते हैं, अपने पल्ले से खिदमत करते हैं और जो अपना टाइम भी देते हैं। जैसे मैं भी देखें, अपना टाइम भी दे रहा हूँ, पैसा भी दे रहा हूँ अपना, और फिर अपनी एनर्जी, हर चीज़ मैंने खुदा के जलाल के लिए दे दिया है, वक्फ कर दिया मैंने अपनी ज़िंदगी को। और ये अब से नहीं है, शुरू से जो है खुदा ने मुझे ये ब्लेसिंग दी है, मुझे चुना है। खुदा का शुक्र है कि वो ब्लेस करता है। उसने बहुत सारी रूहानी, जिस्मानी, माली बरकत दी हैं, मैं उसका शुक्र करते रहते हैं खुदा का। तो ये है बड़ा ज़रूरी है। तो कलीसिया में जो है मुकाबला नहीं होना चाहिए, यानी कि मुकाबला और ये नहीं होना चाहिए कि हमने क्या करना है। कलीसिया में मुकाबले हसद की जगह नहीं होनी चाहिए। कोई मुनादी करता है, कोई दुआ करता है, कोई माली मदद करता है, कोई गरीबों की खिदमत करता है, कोई नए ईमानदारों की हौसला अफजाई करता है, यानी हर एक अपना अपना काम करता है। कलीसिया में डीकन होते हैं, पास्टर, एवेंजलिस्ट हैं, तो सबको अपने अपनी जगह पे काम करना चाहिए। हसद नहीं करना चाहिए, मुकाबला नहीं करना चाहिए किसी के साथ चाहिए कलीसिया में, यानी ऐसा निज़ाम होना चाहिए। हमें वफादार खादमों की इज़्ज़त करनी चाहिए, लेकिन उन्हें अपना बुत नहीं बनाना चाहिए। तमाम जलाल सिर्फ यीशु के नाम को मिलना चाहिए। हालेलुया। उनकी खिदमत करें, उनके से प्यार भी करें, लेकिन यीशु से बढ़कर तो कुछ भी नहीं हो सकता। वो तो यीशु के खादम है, तो यीशु के खादम है। तो हम दूसरे को तकवीत दें, एक दूसरे की हौसला अफजाई हमें करनी चाहिए। तो मसीह ज़िंदगी जो है वो तन्हाई की ज़िंदगी नहीं, बल्कि ईमानदारों को एक दूसरे की ज़रूरत को देखना चाहिए, उसकी मदद भी करनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक फ़ोन कॉल, मुलाकात, दुआ या हौसला अफजाई पैगाम किसी मायूस शख्स को मजबूत कर सकता है। यानी ऑनलाइन खिदमत जो है वो कीमती है, लेकिन जहाँ मुमकिन हो ईमानदारों को एक दूसरे की मकामी कलीसिया के साथ रफ़ाकत, दुआ और शायरबानी में भी शरीक होना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। हर तरह की खिदमत हम कर सकते हैं, शायरबानी में शरीक होना चाहिए हमें, और एक दूसरे की मदद करना चाहिए। तो ये खुदा का शुक्र है, मुझे भी खुदा ने तौफीक दी है 46 ईयर से, जब से मैंने खुदा को कबूल किया। वक्तन मैं खिदमत करता रहा हूँ, रेगुलर नहीं मैंने की, कोई चर्च नहीं था मेरे पास कोई भी, लेकिन मैं जहाँ भी मुझे मौका मिला है तक काम करता हूँ। लेकिन हेनरी के चर्च में मैंने कुछ साल जो है करता रहा हूँ, एज असिस्टेंट पास्टर स्पीच भी करता रहा हूँ, टाइम मुझे मिला था। उसके बाद फिर मैं जो है यहाँ पर आकर, लेकिन जहाँ गया हूँ खुदा का शुक्र है कि वो तक का काम मैं करता रहूँ और खुदा के नाम को जलाल मिले। ये खुदा का फजल ही है जो हमें, और उसका रहम है जो हमें वो इस्तेमाल करता है। हम कौन है? हम तो बहुत नकम्मे लोग हैं, कुछ भी नहीं। हम जो करना चाहिए वो नहीं करते हम, या कोई यीशु ने कहा जो तुम्हें करना चाहिए वही किया, इससे अक्सर तुमने कुछ भी नहीं किया, बल्कि वही नहीं, वो भी नहीं करते जो हमें जिम्मेदारी होती है। इसलिए हमें कुछ अपने जो है अपने आप से, अब जो सवाल पूछने का टाइम है, कुछ अमली सवाल अपने से पूछेंगे हम, अपने आप से पूछें, क्या मैं बाकायदगी से और खुशी से देता हूँ? क्या मैं अपनी सलाहियत खुदा के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ? क्या मैंने मुखालफत की वजह से कोई भला खुला दरवाज़ा छोड़ दिया है? क्या मैंने रूहानी तौर पर जाग रहा हूँ? मेरी ज़िंदगी खुदा के कलाम पर कायम है? क्या मेरे अल्फाज और अमाल में मसीह की मोहब्बत ज़ाहिर होती है? क्या मैं दूसरे वफादार खादमों की हौसला अफजाई करता हूँ? क्या मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा गुनाह तो नहीं जिससे मुझे तौबा करने की ज़रूरत है? तो तौबा करेंगे, और दुआ का टाइम है, दुआ भी करेंगे। हालेलुया, दुआ करेंगे। यीशु मसीह नासरी, हम तेरे पास आते हैं, सजदा करते हैं, कलाम का जो बीज बोया गया 100 गुना 60 गुना फल लाए, लोग सुने, बरकत पाएँ, तेरा नाम जलाल पे। तौफीक बच के हम जब देते हैं तेरे हुजूर में, खुशी से देखो कि खुशी से देने वाले को अज़ीज़ रखता है। और जो खादमीन है खुदा हम तेरी खिदमत करते हैं, उनकी कभी ख्याल रखें, उनकी इज़्ज़त करें, उनके साथ खड़े हों, हमेशा तेरा नाम जलाल पाए, तेरा काम करते हैं खुदा। इस तरह खुदा हम तौफीक बच के हम
मजबूत हों खुदावंद, जागते रहें, ईमान में कायम रहें, मर्दानगी करें और जो काम करें मोहब्बत से करें खुदावंद। यही हमने आज सीखा है, इस पर हमें कायम रहने का फजल अता कर, इब्लीस छीने न पाए तेरे कलाम को। जो लोग सुन रहे हैं बरकत पाएँ, बाद में सुने बरकत पाएँ, और खुदावंद ये मिनिस्ट्री चैनल खुदावंद मैं भी बरकत पाऊँ और तेरे नाम को जलाल दें, और आखिर को हम तेरी बातचीत में शामिल हो सके। तेरी बरकत के लिए तेरा शुक्र हो। हमारे गुनाहों को माफ़ कर, हम गुनाहगार हैं, माफ़ करके अपने खून से धोकर पाक और साफ कर। जलाल के लिए इस्तेमाल कर। जो तौबा करते हैं उनको तौबा की तौफीक अता कर, और तौबा करते हैं उनको माफ़ कर, खुदा ब्लेस कर। हमारी दुआ को सुन को यीशु मसीह के पाक नाम से आमीन। तो खुदा का शुक्र है जो आज हम खुदा उनकी हज़ूरी में टाइम गुजार सके। तो कल जो है वो हम देखेंगे करंथियों, दूसरा करंथियों को शुरू करेंगे हम, उसका पहला बाब कल हम स्टडी करेंगे। अभी जो हम इंग्लिश सेशन में जाएंगे थोड़ी देर के बाद, 15 मिनट के बाद तकरीबन 10-15 मिनट के बाद वहाँ जाएंगे, शुरू करेंगे इंग्लिश सेशन। तो खुदा का शुक्र है कि जो आज हम बातें सीख सकें, जो आज हम खुदा का कलाम पढ़ सकें। ये हमारी बड़ी बरकत की बात है कि हम खुदा के हज़ूरी में टाइम गुजार सके, खुदा के नाम को जलाल दें। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करते रहा करें साथ साथ। और आपसे कल ही मुलाकात होगी खुदा के फजल से। गॉड ब्लेस यू, बाय एंड शालोम, बाय।